I, Professor Bhavesh Kumar Chauhan, BBD ITM, Lucknow, welcome you in course code KEE 302, Electrical Measurement and Instrumentation. Today we will discuss, as mentioned in the previous discussion, regarding the numericals on instrument transformer. So, prior to this we have done discussion on phasor diagrams, different characteristics of different instrument transformers such as current transformer or potential transformer, and then we also discussed the phasor diagram in detail, testing as well as design of the instrument transformer. So, in that context we will be taking up some numericals, because at times obviously this numericals they also come and they ask for determination in terms of certain ratios or phase angle error. So, today we will take certain examples of numerical. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. जो आउटलाइन होगा ये आगे आने वाले आधे घंटे में लगभग, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन, brief recall while discussing the numerical, and then characteristics and obviously along with the numericals. So, let us take first numerical. In this a potential transformer is given. तो एक potential transformer दिया हुआ है, ratio is given as 1000 to 100 volt, meaning thereby primary पे कितना voltage है, how much is the voltage on primary side, it is 1000 volt, and the secondary side voltage in this potential transformer is basically 100 volt. So, and it has the following constants. The constants which are given for this potential transformer, they are as follows. Primary resistance is given as, means Rp, what we call as Rp is given as 94.5 ohm. Okay. Secondary resistance, that you can call it Rs. So, this Rs is given as 0.86 ohm, and primary reactance which you can call as Xp, okay, that is given as 66.2 ohm. So, but you must remember that there is one Xp, this is small xp represents the primary reactance, but let us say if you have to find out capital Xp, this is also a notation which you should remember. तो जब अगर स्मॉल x की जगह कैपिटल X दिया हुआ है या स्मॉल r की जगह कैपिटल R दिया हुआ है, तो वो बेसिकली टोटल, ये जो कैपिटल X है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कैपिटल X रिप्रेजेंट करेगा टोटल रिएक्टेंस, but referred to the primary. So, there is a difference between these two notations. The one is only regarding primary, this is only regarding primary, which is given as 66.2 ohm, and whereas this X is the total reactance but referred to the primary. So, basically that will be n square, and then you can say XS plus XP. So, it will not be only XP. So, XP will be only a part of this, okay, because in numericals this data you often come across. ये आपके सामने ऐसी situations आती हैं, इस न्यूमेरिकल में भी ये probably जो हम डिस्कशन करेंगे उनमें आएगी. तो ये n is that you know the nominal ratio. Nominal ratio means 1000 upon 100. So, what will be the nominal ratio in this case? It will be 10, because प्राइमरी पे जो वोल्टेज दिया हुआ है, हाउ मच इज़ द वोल्टेज, वोल्टेज इज़ 1000, एंड व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी, सो दैट इज़ 100 वोल्ट. तो नॉमिनल रेशियो इज़ 1000 अपॉन 100. तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं. साथ में इसको गौर से देखिए कि सेकेंडरी पे कितना वोल्टेज है, दैट इज़ ओनली 100 वोल्ट, मीनिंग देयर बाय इन ऑल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर विच वी हैव सेड कपल ऑफ टाइम्स, हमने बार बार ये कहा है कि उसका प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो काफ़ी कम होता है. सिमिलरली करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पे जो करंट रेटिंग होती है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, एंड सेकेंडरी करंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. इनफैक्ट ऑन सेकेंडरी यू ओनली कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट और रिलेज, ओके, और मे बी कॉयल. In current transformer it is current coil, and voltage transformer it is a voltage coil, may be of a watt meter. तो सेकेंडरी का जो कहने का मकसद है, सेकेंडरी का रेटिंग हमेशा आपको इसमें लो मिलेगा. जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है, तो वहाँ क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने सुना है.
तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी अगर हम केवल वोल्टेज या करंट के रेशियो पे ध्यान दें तो दे आर ऑब्वियसली स्टेप डाउन बिकॉज you are using them for the purpose of measurement or maybe for protection. Okay, so primary reactance इस numerical में क्या दिया हुआ है, that is 66.2, that is XP. This is not capital XP, so mind it, capital XP will be basically n square XS plus XP. और for अगर suppose कीजिए कि आपको XS मालूम करना है तो उसमें भी आप रिफर का जो रेशियो है, रिवर्स रेशियो, दैट विल बी लेट्स से 1 by n square and then that will be XP, small XP प्लस एक्सेस. तो उसमें रिफर क्योंकि सेकेंडरी की तरफ कर रहे हैं तो सेकेंडरी एज इट इज आएगा. ओके, बट प्राइमरी पे आप जो है ये नॉमिनल रेशियो को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये रिवर्स आ जाएगा 1 by n. सो दैट विल बी एक्सेस, बट दिस इज कैपिटल एक्सेस एंड दिस इज स्मॉल एक्सेस. सो बी वेरी क्लियर ऑन दोज पार्ट. इसमें टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस दे रखा है, दैट इज 110. रिफर टू लेट्स से सेकेंडरी. देन नो लोड करंट is given as, what is no load current? No load current is I naught. So that is I naught. So I naught is given as 0.02 ampere. So first of all you must always check the data because they are very important and you must write them against the mentioned notation that which is common. So the common notation for no load, what is the common notation? That is I naught. So I naught in this numerical is given as 0.02 ampere. Okay, and the power factor is given as 0.4. Okay, so power factor is given as, which you call as alpha. So this is cos alpha. Cos alpha you can say is given as 0.4. Well, what we have to determine? We have to determine first of all phase angle error at no load. तो पहले हमको क्या मालूम करना है? phase angle error मालूम करना है. Okay. And what is the second part of this question? Second part of this question is that we have to evaluate the burden in VA, okay? Because burden is in VA at unity power factor, यानी कि power factor given है, उस पे हमको मालूम करना है at which the phase angle will be 0. तो ये condition दी हुई है. Pre condition is that कि आपको unity power factor पे वो burden मालूम करना है, what will be the value of the burden, so that the phase angle is 0. द फेज एंगल उस बर्डन के पर यूनिटी पावर फैक्टर पे उस बर्डन के लिए फेज एंगल एरर कितना है? 0. सो दीज आर द टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव अहेड. मूविंग अहेड यू सी दैट नो लोड पावर फैक्टर इज गिवन एज 0.4. आपको मालूम है कॉस एल्फा अभी हमने लिखा था, दैट इज गिवन एज 0.4. तो साइन एल्फा क्या होगा? साइन एल्फा विल बी, यू नो साइन square alpha, sin square alpha will be 1 minus cos square alpha. तो obviously sin alpha will be under root 1 square, okay, minus cos square, या 1 square भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, simply आप cos square alpha लिख सकते हैं. तो if you this reduce like this, then this will be not under root but 0.917 will be the sin alpha value. तो sin alpha value will be 0.917. Okay, now this I you have to find out because ये जो हम एरर निकालेंगे फेज एंगल एरर, उसमें IE और IM बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. तो IE what is? IE is the loss component of no load current. What is IE? IE is the loss component of no load current. तो that is equal to I naught, क्योंकि ये no load current है, I naught multiplied by cos alpha. Okay, so I naught you know it is already given as 0.02. Okay, it is given as 0.02. You can see it is given as 0.02. और cos alpha was given as that is power factor 0.4. उसके लिए हमने sin alpha भी निकाल लिया है. So you can see that we have multiplied this power factor, that is cos alpha, and we get IE as 0.008. If we substitute this value, we will get IE, which is a loss component of no load current. Okay, so that is in fact ये नो लोड कंपोनेंट, जो लॉस कंपोनेंट है नो लोड का, ये किस चीज़ को फीड करता है? ये आपके लॉसेस को फीड करता है. कौन से लॉस? एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस. ओके, so that will be equal to IE will come out 0.008 ampere. Okay, then IM is I naught sin alpha. So sin alpha अभी हमने निकाला था 0.917, that is 0.917.
इसको हमने नो लोड करंट से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट एज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. व्हाट इज IM? IM इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. So that will be equal to 0. If we multiply these, we will get this. So हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? IE we have got, then IM also we have got. Okay, and both are basically component of no load current. One is the loss component of no load current, another is the magnetizing component of the no load current. Now turn ratio. What is turn ratio? Turn ratio is basically this secondary voltage rating divided by the primary voltage rating. So you can say on number of turns, because obviously this is आप voltage rating में रख लीजिए, अगर या फिर अगर turns दिए हुए हैं, you can also substitute the number of turns. So let's say primary turns are 1000 and this is secondary is 100, then that will also be like 10. So in this case voltage ratings are given, we have simply taken the voltage rating as given as volts here. So we get turn ratio as 10. So we have got this also, a small n value. Now moving ahead, first part we have to find out basically at no load what is the phase angle error. Okay, so phase angle error के लिए expression क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि this is one of the most important part, इससे related numerical आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं टेस्ट में भी और फाइनल एग्जाम में भी, it is most likely. So this is IS upon N. Okay, what is IS? IS is the secondary current. What is N? N is the turn ratio, okay, or nominal ratio. So you can say turn ratio nominal. Now this is XP, okay. So this is XP and cos alpha, RP, sin alpha, okay. And what is XP? XP is here given as IE into XP, and this is IM into XP, okay, and then NVS, okay. So यहाँ पे देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IS की वैल्यू पहले तो ये देखिए IS की वैल्यू, नो लोड की बात हो रही है तो सेकेंडरी पे करंट क्या होगी? नो लोड का मतलब होता है कि देयर इज नो लोड, इट इज ओपन सर्किटेड एट द सेकेंडरी साइड. सो IS will become 0. IS will become 0. So once IS will become 0, then this whole expression, because if you multiply this here, this is 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 0. What is IS? IS is 0 because it is a no load condition. So this expression will be reduced to 0. Okay, because you are multiplying IS with this bracket factor. इस ब्रैकेट फैक्टर को आप IS से मल्टीप्लाई कर रहे हैं and IS you have taken as 0 because it is a no load condition. So you are left with which expression? You are only left with this expression. So that is IE XP minus IM XP upon NVS. Okay, these are all expressions. So that will be equal to phase angle error. तो ये जो whole expression है that will be reduced to only this expression because this first part will be reduced to 0. So now substituting IE we got at 0.008. Okay, we got as 0.008. ये XP भी given था 66.2. If you recall 66.2. This is given as, this is nothing but XP. तो इसको भी substitute कर दिया. Okay, then this we have found out IM. IM is I naught sin alpha. अभी evaluate किया था और यहाँ पर हमने फिर क्या किया है, XP यहाँ पे substitute किया है, which is this is a different expression. It is RP and XP. Yes, you see this 94.5. This is a primary resistance. So यहाँ पे आप primary resistance का term लेंगे. Okay, so this is RP. IM RP. So make it, this is RP. Mind it. So ये RP को यहाँ substitute किया. What is RP? RP is the primary resistance. और ये primary reactance यहाँ पे आ रहा है. What is this? This is XP. So the expression is, if you see here, this is RP. Okay, and this is IM. तो IM को हमने RP से मल्टीप्लाई किया और I को XP से मल्टीप्लाई किया है. तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके अलावा आपने N को 10 अभी एवेल्यूएट किया था and VS is a secondary voltage. So that is you have substituted as 1000. This is NVS. N के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर टर्म VS है. सो इसको रेडियन के टर्म्स में अगर एक्सप्रेशन को लेके आएंगे, सो दैट विल बी लाइक से -401 रेडियन. इसको सब्स्टिट्यूट करके एवेल्यूएट करेंगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, सेकेंड पार्ट में यूनिटी पावर फैक्टर पे, ओके, यूनिटी पावर फैक्टर पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. यहाँ पे याद रखिएगा सेकेंडरी का वोल्टेज दिया हुआ है,
तो सेकेंडरी के वोल्टेज में दैट इज रेटिंग इज गिवन एज 100. सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, 100 को सब्स्टिट्यूट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट विल कम एज 1000 एंड देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, so please take care on that part. I think with substitution of 10 into 100 you will get as 1000 and there you will get this expression. So please correct on that part. जो तो बेसिकली जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें न्यूमेरिकल में कि आपको इस एक्सप्रेशन को रिमेंबर करना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन. बट इस केस में कि यूनिक क्या है, इस केस में आपको नो लोड करंट दी हुई है, तो आई से जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है. द expression has simplified to only theta as IE then XP minus IM RP divided by NVS. N आपका टर्न रेशियो, VS सेकेंडरी वोल्टेज, IE आपका लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट, XP इज द प्राइमरी रिएक्टेंस, IM इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट एंड RP इज द प्राइमरी रेजिस्टेंस. तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो सब्स्टिट्यूट. नाउ सेकेंड पार्ट में वी हैव टू डिटरमाइन द बर्डन. ओके, एट यूनिटी पावर फैक्टर, जिसकी वजह से फेज एंगल कंडीशन दिया हुआ है, फेज एंगल एरर शुड बी 0. तो यहाँ पे देखिए यूनिटी पावर फैक्टर मींस कॉस थीटा कॉस डेल्टा इक्वल टू 1. क्योंकि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट जिस पे कि आप लोड लगाते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो, ओके, चाहे कोई रिले हो, तो उसका जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा. तो ये कॉस डेल्टा क्या हुआ, कॉस डेल्टा बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट का पावर फैक्टर हुआ और वो क्या दे रखा है हमको, यूनिटी. ओके, सो माइंड दिस डेल्टा. डेल्टा इज ऑलवेज द पावर एंगल ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ओके, और एनी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर. तो इस केस में ये हमको प्री कंडीशन दे दिया कि यूनिटी पावर फैक्टर, तो कॉस डेल्टा ऑटोमेटिकली विल बी रिड्यूस टू 1, दैट विल बी 1. ओके, तो साइन डेल्टा क्या होगा, अगर कॉस डेल्टा 1 है तो साइन डेल्टा ऑटोमेटिकली फॉर द सेम केस विल बी 0. अब इस केस में अगर हम यहाँ पे कॉस डेल्टा को 1 रखते हैं, बिकॉज हमको फेज एंगल एरर निकालना है, एक्सप्रेशन वही सेम है. ओके, एक्सप्रेशन इज सेम, तो वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला ओनली. बट दिस इन दिस केस ऑल्सो आरपी साइन डेल्टा, क्योंकि साइन डेल्टा क्या है, 0 है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा. सेकेंड पार्ट में भी दिस विल बी नलीफाइड, दिस विल बी रिड्यूस टू 0, तो ये 0 हो जाएगा. तो क्या बचेगा, IS अपॉन N मल्टीप्लाइड बाई XP, क्योंकि कॉस डेल्टा 1 है इसलिए सिंपली XP रह गया. देन जो माइनस का एक्सप्रेशन यहाँ देख रही है, ये आ रहा है एक्सप्रेशन आपका प्लस का, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो दोनों एज इट इज कैरी कर रहे हैं. ओके, दिस इज माइनस एक्सप्रेशन, सो दिस इज माइनस IP XP माइनस IM RP डिवाइडेड बाई NVS, रेस्ट इज सेम. तो केवल क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन आपका नलीफाई हो गया. क्यों, क्योंकि साइन डेल्टा 0 है. अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सब्स्टिट्यूट करते समय क्या ध्यान रखना है कि थीटा की कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है कि फेज एंगल एरर, उस फेज एंगल एरर के लिए आपको बर्डन निकालना है जबकि आपका पावर फैक्टर यूनिटी है और फेज एंगल एरर 0 है, तो उसके लिए डिटरमाइन करना है हमको बर्डन कितना होगा VA में. तो यहाँ थीटा क्या होगा, इसका मतलब हम थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो उससे क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है INS प्लस IP XP, ये ध्यान रखिए, दिस इज प्लस, जैसा यहाँ भी देख रहे थे आप, ये प्लस था यहाँ पे, दिस इज ए प्लस एक्सप्रेशन, तो प्लस और ये माइनस का टर्म है, दिस इज माइनस टर्म हियर. तो इसको देखिए आप कि एक्सप्रेशन इज रिड्यूस टू IS अपॉन NS XP, कॉस डेल्टा का 1 आ गया, साइन डेल्टा वाला जो RP का एक्सप्रेशन था वो नलीफाई हो गया और बाकी क्या एक्सप्रेशन बचा, IE XP माइनस IM RP. ओके, तो IE XP माइनस IM RP. सो इसको क्या करना है, 0, क्योंकि थीटा दे रखा है 0. ये किसका एक्सप्रेशन आया, थीटा का आया. ओके, तो इवेंचुअली क्या हुआ, जब इसको 0 कर दिया तो NVS का तो मतलब नहीं रहा, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर 0 है, ये एक्सप्रेशन 0 है, तो इसका मतलब ये तो इररिलेवेंट हो गया. केवल इसको आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, केवल इसको 0 सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर इसको 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, IS को अगर इधर ही कैरी किया, ओके, तो ये फैक्टर इस राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये फैक्टर अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो IM जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, IM RP, ये माइनस टर्म था यहाँ पे. ओके, दिस वाज माइनस टर्म, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये जो पॉजिटिव टर्म था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. ओके, और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा था दैट हैज़ कम इनटू न्यूमिनेटर,
और जो न्यूमिनेटर में आ रहा था वो क्या है, वो डिनोमिनेटर में चला गया। तो वी गॉट फाइनली दिस एक्सप्रेशन एज आई एस इक्वल टू एन अपॉन एक्स पी मल्टीप्लाइड बाई आई एम इंटू आर पी माइनस आई ई इंटू एक्स पी। ओके, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका रेशियो दे ही रखा है यहाँ पे, दैट इज 10। ओके, ये क्या है, ये टर्न रेशियो है। और ये जो XP है, व्हाट इज द XP? XP इज द टोटल रिएक्टेंस रिफर्ड टू द प्राइमरी साइड, दैट इज n स्क्वायर XS प्लस XP। ओके, दैट विल बी 100। और IM क्या है, IM इज, आप अगर इसको एस्टिमेट करेंगे तो वो 100 के बराबर आएगा। तो IM का क्या होगा, 0.0834, ये हमने मालूम ही किया हुआ था। RP जो है 94.5 ऑलरेडी गिवन है। ओके, IE कितना होगा, IE भी हमने डिटरमाइन कर लिया था, माइनस 0.008, और XP दैट इज ऑल्सो गिवन एज 66.2। ओके, तो हमने यहाँ 0 रख के इस एक्सप्रेशन को रीवेरीफाई कर लिया। IS हमको मालूम करना है, क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमको बर्डन मालूम करना है। और बर्डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज VS IS, सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी का वोल्टेज, उन दोनों के प्रोडक्ट्स को आप बर्डन कहते हैं, VA वोल्टेज एम्पियर। ओके, सो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट IS एज इक्वल टू, व्हाट विल बी IS? IS विल बी 0.109 एम्पियर। ओके, 0.109 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या है, VS इज गिवन एज 100, VS इज गिवन एज 100, वहाँ भी पहले हमने करेक्ट किया था। तो VS इज गिवन एज 100। ओके, वहाँ पे 1000 से करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे एक जगह एक्सप्रेशन में था दिस दैट। ओके, यू विल स्टिल गेट दिस आई थिंक। सो नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया 100 एंड देन 0.109 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन you will get this. So this will be the burden. What 10.9 volt ampere. 10.9 volt ampere will be the burden. Okay, at the secondary, for which phase angle error will be 0 at unity power factor. तो आपने देखा फेज एंगल एरर 0 यहाँ पे हमने रखा था, थीटा को 0 रखा था, और थीटा का एक्सप्रेशन जो था उसको इक्वेट कर दिया था 0 के। और क्या किया था, कॉस डेल्टा को हमने, कॉस डेल्टा को क्या है 1 रखा था, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन दी हुई थी। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सप्रेशन IS अपॉन n XP कॉस डेल्टा माइनस RP साइन डेल्टा प्लस IE XP प्लस है, याद रखिएगा, आई रिपीट, माइनस IM RP, ओके, डिवाइडेड बाई NVS, एंड दैट फेज एंगल एरर जो इस फॉर्मूले से आती है वो रेडियन में आती है। तो यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके, एंड दैट विल हेल्प यू टू इवेल्युएट द फेज एंगल एरर। बाकी टर्न रेशियो और RCF रेशियो करेक्शन फैक्टर, इन सब के हमने फार्मूलेस पहले ही बता दिए हैं। नाउ लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल, ये भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के रेफरेंस में है। इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, द डाटा गिवन हियर इज ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेटेड एट 6900 वोल्ट्स एंड सेकेंडरी पे कितना है, देखिए आप सेकेंडरी में इसमें केस में भी काफ़ी कम वोल्ट आ रहा है, दैट इज 115 वोल्ट। ओके, हैज़ 22,500 टर्न, so that is also a very significant data in the primary winding। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे टर्न्स कितने दे रखे हैं, 22,500। ओके, देन 375 जो है वो टर्न्स दे रखे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पे। सो दैट इज, वी हैव गॉट फर्स्ट ऑफ ऑल द वोल्टेज रेटिंग, ओके, सेकेंड वी गॉट द प्राइमरी टर्न्स, थर्ड डेटा वी हैव गॉट इज द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड। नाउ विद 6900 वोल्ट्स अप्लाइड टू द प्राइमरी, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं आप, 69,000, यानी कि रेटेड वोल्टेज ही अप्लाई कर रहे हैं। एंड द सेकेंडरी सर्किट अपॉन and the secondary circuit upon circuited on circuited, the primary winding current is 0.05। तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 0.05। So I think this is secondary winding circuit is given as the primary winding current is given as 0.005 एम्पियर, और लैगिंग, ये लैगिंग कंडीशन दे रखी है वोल्टेज किस एंगल के साथ, 73.7 डिग्री एंगल दे रखा है, ओके, जिससे ये लैग कर रहा है
क्या लैग कर रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग करंट किससे लैग कर रहा है? वोल्टेज से। कितने एंगल से? 73.7। नाउ विद द पर्टिकुलर बर्डन कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, द प्राइमरी वाइंडिंग करंट इज, अगर अब ओपन सर्किटेड, ये दिस इज सर्किट ओपन आई थिंक, ओके। अब कुछ बर्डन लगा दिया है, तो बर्डन के केस में क्या दे रखा है, यानी कि जब ओपन था तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग करंट जो था, जो जिसको कि आप नो लोड करंट भी कह सकते हैं, दैट इज गिवन एज 0.005 एम्पियर। लेकिन बट अगर वो जो है वो सेकेंडरी जो है बर्डन कनेक्टेड है, सो वी विल continue with this discussion in next lecture also, because numericals need to be discussed in details. तो अभी इसके बाद डाटा को देख लेते हैं। इसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस भी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस 1200 दे रखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इज गिवन एज 2000 एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 0.4 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस इज 0.7. So we will continue with this numerical in next lecture also. Thank you.